غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نوجوانوں کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی تھی، لیکن تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی ملا ہے تو کوشش کروں گا دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس مختصر سے وقت میں. دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. بس آپ کی زندگی کے احوال، آپ کی زندگی کے آئینے میں ہمیں اپنے احوال درست کرنا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسا گزارا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، وہ نمونے کیسے تھے، اخلاق کے پہلو کیسے تھے. ان ساری چیزوں کو دوستو ہمیں پڑھ کر، سن کر، انہی کے آئینے میں اپنے احوال درست کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. دوستو، جب میں ذکر کر ہی رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں. اور ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کا مربی خود اللہ رب العالمین ہوتا ہے. اللہ خود ان کی تربیت کرتا ہے اور اس طرح ان کو پاک کرتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے سب سے افضل سانچہ اور نمونہ بن جاتے ہیں. اب چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی خود اللہ رب العالمین ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں دو چیزوں کی قسم کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا، آپ کے اخلاق کی گواہی دی. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. اور دوستو ایک بات اور بتاؤں، انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وحی کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے وحی الہی ان کا اخلاق ہوتا ہے. اس لیے عائشہ سے کسی نے پوچھا، اما عائشہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول ہو بہو قرآن کی عملی تصویر تھے. اور صرف قرآن نہیں بلکہ آسمانی جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی ہے. عطا بن یسار نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ تورات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا ذکر ہے آپ مجھے بتائیے. ہاں، عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم تورات میں بھی اللہ کے رسول کی بعض ان صفتوں کا ذکر ہے جو قرآن میں ہے.
क्या है कुरान में? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। और वही तौरात के अंदर भी है। और तौरात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद ये सिफतें जिक्र हैं कि आप अरब वालों के लिए किला होंगे, आप अल्लाह के बंदे उसके रसूल होंगे। अल्लाह खुद कहता है कि मैंने उनका नाम मुतवक्किल रखा, अल्लाह पर भरोसा करने वाला। और तौरात के अंदर अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि आप बदमिजाज नहीं होंगे, बद अखलाक नहीं होंगे, बाजारों में ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगे, बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, बल्कि आपसे कोई बदतमीजी करेगा भी, आपको कोई अजियत पहुंचाएगा भी, तो आप माफी और दरगुजरी से काम लेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तौरात के अंदर हैं। और कुछ और भी हैं तौरात और कुरान के अलावा। गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने दी है, कुछ अपनों ने, कुछ गैरों ने दी है। देखिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, शदीद परेशानी और गमगीन हालत में अल्लाह के हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था, लेकिन हजरत खदीजा ने मुझे तसल्ली दी। क्या कहा? कल्ला अबशिर फवल्लाहि यखज़ीक अल्लाहु बदन। अल्लाह के रसूल हरगिज़ नहीं, मैं तो खुशखबरी देती हूं, आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। आप जान का बिल्कुल अल्लाह के रसूल खौफ छोड़ दीजिए, बल्कि अल्लाह ने आपके साथ भलाई का इरादा किया होगा। क्यों? हजरत खदीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों आला अखलाक को बयान करती हैं कि आप तो सिला रहमी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिनके पास कुछ ना हो कमा कर देते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, मेहमानों की ज़ियाफत करते हैं, हक के मामलात में लोगों की मदद करते हैं। यानी अल्लाह आपके अखलाक करीमा के पेश नजर आपको रुसवा नहीं करेगा। ये तो अपनी थी। कुफार कुरैश ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, वो भी अल्लाह के रसूल को नबूवत से पहले सादिक व अमीन के लक़ब से पुकारते थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने कराबतदारों को भी अल्लाह के अज़ाब से डराइए। कोई सफा पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़कर पूरे कुफार को बुलाते हैं कि आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक घोड़सवार की जमात है, दुश्मन छुपे हैं और तुम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या मेरी बात का यकीन कर लोगे? यक जबान सब होके बोले कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न। अल्लाह के रसूल हमारा तजुर्बा है, बचपन से आपको देखते आ रहे हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। अगर आप कहते हैं कि पीछे दुश्मन है तो होंगे, हमें यकीन है इस बात पे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही दे रहे हैं कि आपको हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, अगर आपने कह दिया तो वो है। सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खुतूत लिखे बादशाहों के नाम। आपने खत लिखा था रूम के बादशाह हिरकल के नाम। हिरकल ने खत पढ़ने से पहले एक मक्का की काफिला पहुंचा हुआ था, मक्का का, जिनके सरबराह अबू सुफियान थे, अबू सुफियान बिन हर्ब। ये तिजारत का सामान लेने रूम जाते थे। तो खत पढ़ने से पहले हिरकल ने इस काफिले को बुलाया, अरब के ताजरों को, और अबू सुफियान को कटहरे में खड़ा किया, पीछे लोगों को पीछे बिठा दिया। अबू सुफियान से कहा, ओ मक्के के ताजर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवालात करूंगा और दयानतदारी के साथ जवाब देना। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की या झूठ बोला तो पीछे तुम्हारी जमात बैठी है, तुमको टोक देगी, तुम्हें झुटला देगी। अबू सुफियान कहता ठीक है। देखिए अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन कितनी दयानतदारी के साथ जवाब देते हैं। वो हिरकल पूछता है, अच्छा ये जो नबूवत का दावा कर रहा है, हाँ, जो नबूवत का ये दावा जो इंसान कर रहा है, तुम लोगों ने कभी उन पर झूठ की तोहमत लगाई? अल्लाह अकबर। सुफियान कहता है कि नहीं, कभी हमने झूठ की तोहमत नहीं लगाई, कभी किसी इंसान ने उनको झूठा नहीं कहा, बल्कि वो तो सच्चे और अमानतदार के लक़ब से मशहूर है पूरे अरब में। हिरकल कहता है अच्छा ठीक है। वो किन किन चीजों की दावत देता है? अबू सुफियान कहता है यक़ूलु उबुदुल्लाह वहदहु वला तुशरिकू बिही शैअन वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाह वस्सिद्क़ वस्सिला वल अफ़ाफ़। वो हमें कहता है कि तुम अकेले अल्लाह की इबादत करो और जो अल्लाह के सिवा तुम जिनको शरीक करते हो छोड़ दो, और छोड़ दो जो तुम्हारे आबा व अजदाद कहते थे। इसके अलावा हमें नमाज पढ़ने का, सिला रहमी का और पाक दामन रहने का, इन सारी चीजों का हुक्म देता है। देखिए बादशाह दोस्तों हर काम हिकमत से करता है। हाँ हिकमत तो होती है उन लोगों के पास। उनने तौजीहात बयात की, तौजीहात इंसान जवाबों की तौजीहात का। देख मेरा तजुर्बा ये कहता है, मक्के के ताजिर तू कहता है कि हम लोगों ने कभी किसी इंसान पर उसने झूठ नहीं गढ़ा। जो इंसान लोगों पर झूठ नहीं बोल सकता, वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है? वो अल्लाह पर कैसे झूठ गढ़ सकता है? और तुम कहते हो कि वो हमें शिर्क से रोकता है, अकेले अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है और हमें सच बोलने का, सिला रहमी का, रिश्तों को मिलाने का कहता है। अगर ऐसी बात है और मक्के के ताजिर अगर तू अपनी बात में सच्चा है, अगर तो वो हकीकत में नबी है, वो सचमुच नबी है और
अनकरीब वो मेरे भी तख्ते पा का मालिक बन जाएगा, वो यहां भी हुक्मरानी करेगा। और मुझे मालूम था कि वो आने वाला है, लेकिन नहीं जानता था कि वो तुम्हारी कौम से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं वहां तक पहुंच पाता तो मैं जरूर उनसे मुलाकात करता। अगर मैं मुलाकात कर लेता तो उनके पांव को धोता, क्योंकि यकीनन वो नबी है। दोस्तों, दुश्मनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आला अखलाक वाला कभी नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बेहुदा गुफ्तगू करने की कोशिश भी नहीं की। हजरत अनस कहते हैं, ना आपने किसी को बुरा भला कहा, ना डांटा, ना अल्लाह के रसूल ने किसी पर लानत भेजी। अगर अल्लाह के रसूल को किसी को डांटना भी होता तो अल्लाह के रसूल कहते, क्या हो गया ऐसे, इसकी पेशानी खाक आलू दो। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक देखिए। अल्लाह के रसूल एक खादिमा को, अपनी लौंडी को आवाज देते हैं, वो सुन रही थी लेकिन आ नहीं रही थी। अल्लाह के रसूल की अज़वाज ने बताया, अल्लाह के रसूल वो आपकी आवाज सुन रही है लेकिन आ नहीं रही है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए। अल्लाह के रसूल उस दिन गुस्सा हो गए अपनी लौंडी पर, कहा अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो इस मिसवाक से तुम्हारी पिटाई करता। खशियत इलाही देखिए, हाँ, अल्लाह से डर देखिए, मिसवाक की पिटाई क्या होती है। कहा अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो मिसवाक से तुम्हारी पिटाई करता। ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। हजरत अनस कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए कहा, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को मना कर दिया। दिल में था कि जाऊंगा, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानूंगा, लेकिन वहां पर मना करके मैं निकला। बाजार में कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं भी छोटा बच्चा था, खेलने में मशगूल हो गया। वो जहन से बात निकल गई कि अल्लाह के रसूल ने किसी काम के लिए मुझे भेजा। अल्लाह के रसूल पीछे से हजरत अनस की गर्दन को पकड़ लिया। हजरत अनस ने देखा तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे थे। कहा प्यारे अनस, जिस काम के लिए भेजा वहां पर गए थे? कहा जी अल्लाह के रसूल अभी जाता हूं। अल्लाह के रसूल ने न डांटा न मारा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि जिस काम के लिए भेजा तुम गए थे? कहा अल्लाह के रसूल अभी जाता हूं। दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब दोस्तों आपके सामने कुछ पहलू रख दूं, मुख्तसर वक्त है, कुछ पहलू रख दूं, आप लोग खुद फैसला कर लेंगे कि हजरत आयशा ने क्यों कहा कि कान खुलुकुल कुरान, अल्लाह के रसूल कुरान की अमली तस्वीर थी, क्यों हजरत आयशा ने कहा, आप खुद फैसला कर लेंगे। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक पहलू था कि आप फय्याज थे, सखी थे। ये सखावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कूट कूट के अल्लाह ने भर दिया था। देखिए हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने की शर्त पर जो चीज जो इंसान मांगता अल्लाह के रसूल उसको दे देते। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस्लाम कबूल करने पर इतनी बकरियां दी जो 2 पहाड़ों के दरमियान जगह को भर सकती हैं। वो शख्स अपनी कौम के पास जाता और कहता अल्लाह की कसम इस्लाम कबूल कर लो। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मार देते हैं, गोया उन्हें गुर्बत का कोई डर ही नहीं, उन्हें फिक्र फाका का कोई अंदेशा ही नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मां सोइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैउन कत्तुन फकाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज मांगी जाए, हमें कभी हमने नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल ने मना किया हो। कभी अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक थी कि अल्लाह के रसूल के पास कोई चीज होती, गर्चे आपको उसकी जरूरत है तो अल्लाह के रसूल उसको दे देते, अगर नहीं होती आपके पास, बिल्कुल नहीं होती, तो अल्लाह के रसूल ना नहीं करते, खामोश हो जाते, खामोश हो जाते अल्लाह के रसूल। ये आपकी आदत मुबारक थी। दोस्तों, साल बिन सादा साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत ने चादर दी, अल्लाह के रसूल को उस चादर की जरूरत भी थी, आपने फौरन उसको ओढ़ ली। एक सहाबी ने देखा कि अल्लाह के रसूल चादर तो बड़ी अच्छी है, आप मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, आपने उतार कर उनको दे दी। अब अल्लाह के रसूल चले गए, सहाबा ने उसकी मलामत की, उसको बुरा भला कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया अल्लाह के रसूल से चादर मांगकर, जानते हो ना अल्लाह के रसूल को उसकी जरूरत थी, तभी तो अल्लाह के रसूल ने हदिये को कबूल किया, तूने अच्छा नहीं किया। और सवाल कर डाला, जानते हो कि अल्लाह के रसूल से सवाल करने के बाद अल्लाह के रसूल कोई चीज अपने पास नहीं रखते, साहिल को दे देते हैं। उसने कहा मुझे बुरा मत जानो, मुझे माल की लालच नहीं थी, मैंने देखा कि उस चादर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक को छू लिया। लोगों, मैंने इसलिए चादर ली है कि शायद वो चादर मेरे कफन में काम आ जाए। हाँ, मैं उस चादर को बोसीदा नहीं करूंगा, पहनूंगा नहीं, उसको मैं यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं तह करके रख दूंगा, वो चादर मेरे कफन में काम आएगी। शायद उस चादर की वजह से जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू लिया, अजाब में कोई तखफीफ हो जाए। इसीलिए देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जरूरत से बची हुई चीजें नहीं, बल्कि अपनी जरूरत की चीजें भी अल्लाह के रसूल दे दिया करते थे। हम उम्मतियों का हाल यह है, अल्लाह की कसम जरूरत की चीजें तो छोड़िए, बची हुई चीजें हमारे घरों के अंदर, फ्रिजों के अंदर सड़ती हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि हमारा पड़ोसी भूखा मर रहा है किसी को दे दें, हमें अल्लाह की कसम तौफीक नहीं होती। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक पहलू था। दूसरा दोस्तों पहलू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी, इनकिसारी, मुनकसिरुल मिजाजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत ज्यादा। आपको बताओ अल्लाह के रसूल
सैयदुल बशर थे, तमाम इंसानों के सरदार, इमामुल अंबिया थे। लेकिन दोस्तों इतने ऊंचे दर्जे पर फायद हो जाने के बावजूद अल्लाह के रसूल इतने मुनकसिरुल मिजाज थे। आज भी देखिए, झुकावपन देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल जमीन पर बैठ जाते, अपने सहाबा से मुलाकात करते, गरीब मुसलमानों से मिलते, उनका हाल चाल पूछते। अल्लाह के रसूल अगर किसी को नहीं देखते, बीमार होता तो अयादत के लिए जाते, वफात पा जाते तो जनाजे नमाज पढ़ते और तदफीन तक अल्लाह के रसूल उनके साथ रहते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जिब्रील के साथ बैठे थे। जिब्रील ने ऊपर से एक फरिश्ते को आते देखा, कहा अल्लाह के रसूल ये फरिश्ता देख रहे हैं, जब से अल्लाह ने इसको पैदा किया कभी जमीन पर नहीं उतरा, नहीं नाजिल हुआ, यहां तक कि फरिश्ता आ गया। वो अल्लाह के रसूल से कहता है अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह ने ये पैगाम देकर भेजा है कि आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं कि बंदा नबी बनना चाहते हैं। जिब्रील ने कहा ले तवाज़ु रब्बिका, अल्लाह के रसूल अपने रब के लिए तवाज़ु इख्तियार कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं बंदा नबी ही ठीक हूं, मैं बादशाह नबी बनना नहीं चाहता, बंदा नबी ठीक हूं। इसीलिए अल्लाह के रसूल दुआ करते थे अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख, मिस्कीनों में मौत दे, मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? आपने फरमाया आयशा तो इस बात को नहीं जानती, ये मिस्कीन, ये गरीब लोग अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे, नहीं जानती तो इस बात को। दोस्तों तवाज़ु, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तवाज़ु पसंद थे। आज भी देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में। हजरत अनस कहते हैं मदीना की लौंडियों में से एक लौंडी आती, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़कर जहां चाहती ले जाती और खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करती। मदीना की लौंडिया, एक औरत थी मदीने में जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, पागल औरत थी। अब पागल औरत को हमारे मुआशरे में क्या हैसियत हासिल होती है? पागल तो छोड़िए, हमसे थोड़ा पैसे में कोई कम हो तो अल्लाह की कसम हम उसको हकीर समझते हैं, हम उसे इंसान ही नहीं समझते। लेकिन वो पागल औरत अल्लाह के रसूल के पास आती है, कहा ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो उम्मे फला, तुम मदीने की जिस गली में मुझे ले जाना चाहे, जहां मुझसे गुफ्तगू करना चाहे, जहां अपनी जरूरत की चीज मुझे बताना चाहे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ती है पागल औरत और अल्लाह के रसूल को एक कोने में ले जाकर बिठाती है, वहां बैठ जाती है और अल्लाह के रसूल को अपनी जरूरत से आगाह करती है। सोचिए दोस्तों, एक औरत जिसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल सही नहीं है, जाहिर सी चीज है उसको मुआशरे में कोई हैसियत हासिल नहीं होती। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे परेशान नहीं किया, किसी दरबार ने उसे टाइम नहीं दिया, किसी दरबार ने उसको दोस्तों थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोका। वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से मुलाकात करती है और कहती है अल्लाह के रसूल मुझे आपसे काम है। लेकिन कितनी इज्जत दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस पागल औरत का कितना एहतराम किया कि ओ उम्मे फुला, उम्मे फुला कहकर अल्लाह के रसूल ने उसे पुकारा और खलवत में बात करने का मौका दिया ताकि बिला इज्जत, बिना किसी खौफ के ये औरत अपनी जरूरत को मेरे सामने रख सके। ये मुनकसिरुल मिजाजी, ये आजिज़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों हम उम्मतियों का हाल ये है, अल्लाह अगर किसी को थोड़ा सा ओहदा दे दे, मामूली सा दोस्तों अफसर हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इतना इतराता है दोस्तों कि किसी को अपनी जरूरतमंदों के दरमियान कितनी सिक्योरिटी लगा देता है, कितने दरबान लगा देता है कि कभी कभार तो साहब से मिलने के लिए घंटों ख्वार होना पड़ता है, कई दिन ख्वार होना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि बिना रिश्वत दिए साहब से मिलने की उम्मीद ही नहीं होती। अरे ये तो जरूरतमंद है, उनके मातहत काम करने वाले मुलाजिम भी साहब के सामने अपनी बात रखने से कतराते हैं, खौफ खाते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी पे कुर्बान चाहिए, इंकिसारी पे कुर्बान चाहिए। साहबा कहते हैं हम जब भी चाहते, जिस वक्त चाहते अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर लेते। कोई दरबार नहीं रखा था अल्लाह के रसूल ने, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जिस वक्त चाहते बिला खौफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हम दोस्तों कितने भी बड़े ओहदे पर चले जाएं, कितने भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, लेकिन रब की नजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीज बन ही नहीं सकते। रब की नजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरातर हो ही नहीं सकते। अरे वो तो वो था जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हरूफ बना दिए। जब उसने नजर आसमान की तरफ डाली, अल्लाह ने किबले को चेंज कर दिया, किबले को अल्लाह ने बदल दिया। जिसके वुजू की कतरों को लोग जमीन पे गिरने नहीं देते थे, जिसकी थूक को लोग अपने जिस्म पे मल लेते थे, दोस्तों जिसकी अदना इशारे पे लोग कट जाना अपने लिए बात सादत समझते थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जगह थोड़ी देर के लिए लेट जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना दे। जिस कब्रिस्तान में मुर्दे को अल्लाह के रसूल ने रखा, अल्लाह ने उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना दिया। अल्लाह के रसूल ने जहां नमाज पढ़ी, अल्लाह ने नमाज को 1,00,000 नमाज बना दिया। जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से बेबसी के आलम में कुफ्फार ने निकाला, अल्लाह की जात को गैरत आ गई कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे उठने वाले मुझे इन कदमों की कसम है, वो दिन भी आने वाला है जब तेरे इन कदमों की चाप के सामने रूम
वो ईरान के फौजों के दिल पारा पारा उनके पत्ते पानी हो जाएंगे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जमाना चला जाए कयामत तक, और आदम से लेकर कयामत तक की पूरी दोस्तों अगर जमाना चला भी जाए तो शायर कहता है मज़त दहुर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फअजज़ना अन नुज़राही। जमाना कयामत तक चला जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत न पहले पैदा हुई न कयामत तक पैदा होगी। इतनी बड़ी दोस्तों, इतने बड़े मर्तबे, इतने बड़े दोस्तों मर्तबे पर फायद हो जाने के बाद सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे साथ जमीन पर बैठ जाते, जमीन पर खाना खाते, बकरी अपने हाथ से बांधते, हाय एक जौ की रोटी पर गुलाम की दावत को भी कबूल कर लेते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी थी। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी मोहब्बत सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, आप तारीख उठाइए, मुशरिकीन मक्का में से एक आदमी मदीने में 2-3 दिन रहने के बाद अपनी कौम के पास जाता है और कहता है अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ पे छोड़ दो। अरे जितनी सहाबा की मोहब्बत मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखी, मैंने रूम के बादशाहों को देखा, ईरान के बादशाह को देखा, हबशा के बादशाह को देखा, उनके वजीरों को देखा, खुद्दारों को देखा, उनकी राया को देखा। जो मोहब्बत मैंने सहाबा की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखी, मेरे लिए मिसाल लाना कासिर है, मैं मिसाल नहीं पेश कर सकता। इतनी मोहब्बत सहाबा को, लेकिन सहाबा कहते हैं इतने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमें कोई अजीज नहीं था, लेकिन हम अल्लाह के रसूल के आने पर खड़े नहीं होते थे। क्यों? हमें पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलू पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल को ये चीज पसंद नहीं थी कि मैं आऊं लोग मुझे खड़े होकर सल्यूट मारें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर थी नहीं चीज। लेकिन दोस्तों देखिए आपकी उम्मतियों को, आज मामूली अफसर अल्लाह की कसम आ जाए, उसकी मातियत मुलाजिम खड़ा न हो तो साहब का मिजाज खराब हो जाता है। हाय उस्ताद को देखकर शागिर्द खड़ा न हो तो साहब का मिजाज खराब हो जाता है। उस्ताद शागिर्द और मुलाजिमत की तो शामत आ जाती है। दोस्तों बर्बादी उस रजील सिफत की, लोगों के अखलाक को बिगाड़ कर रख दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देखिए तकब्बुर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के करीब भी नहीं आया कभी। अल्लाह के रसूल फतेह मक्का में, एक बात आपको बताऊं दोस्तों, जिस शहर से आपको निकाला जाए आप उस शहर को फतेह कर ले, मैं कहता हूं आप जमीन में नहीं हवा में उड़ेंगे। तकब्बुर कितना आएगा हमारी जात में, लेकिन 10 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वालों ने निकाला, 10 साल के बाद उसी शहर को फतेह करके दिखाया। आज भी देखिए तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में तकब्बुर नहीं आया। सहाबा कहते हैं कि फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के रसूल की आज़ी का यह हाल था कि आपकी ठोड़ी मुबारक कजावे की लकड़ी से लग रही थी। अल्लाह के रसूल इस अंदाज में मक्के के अंदर दाखिल हुए कि आपकी ठोड़ी मुबारक उस कजावे की लकड़ी से लग रही थी। हाय उस वक्त भी अल्लाह के रसूल मुतकब्बराना अंदाज में दाखिल नहीं बल्कि आसी इंकिसारी के अंदाज में अल्लाह के रसूल मक्के के अंदर दाखिल हुए। एक और सिफत थी रहम दिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम दिल। दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम आपको सख्त दिल बना देते, संग दिल बना देते तो सहाबा का जो हल्का आपके इर्द गिर्द रहता ये छट जाता, कोई आपके करीब भी नहीं आता। इसीलिए आप सहाबा के जो उनके मामला थे उनमें उनके साथ मशवरा कीजिए, उनको माफ कर दीजिए, उनकी जो गलतियां हो अल्लाह से मगफिरत तलब कीजिए। देखिए हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल थे कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। एक बद्दू देहाती आता है मस्जिद के कोने में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबा उसे मारने के लिए लपके, लेकिन अल्लाह के रसूल ने रोक दिया। आपने फरमाया रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। जब वो आदमी पेशाब कर लेता अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ उसके पेशाब पर पानी की डोल बहा दो, और तुम्हें तंग सख्ती के लिए नहीं बल्कि नरमी के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया कि वो नहीं जानता मस्जिद की कदर कीमत, तो आपने उसे बुलाकर कहा कि देखो ये मस्जिदें हैं, ये अल्लाह का घर है, ये हमारी इबादत के लिए हैं, अब इसमें मुनासिब नहीं कि कोई गंदगी फैलाए। दोस्तों अल्लाह के रसूल की रहमदिली को देखकर इस्लाम कबूल कर लेता है, वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कई मर्तबा मेरा ये ख्याल होता है कि मैं आज नमाज को लंबा करूंगा, लेकिन औरतें मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बच्चों के रोने की आवाज मेरे कान से टकराती थी तो मैं नमाज को तफरीक कर देता, हल्का कर देता। मुझे मालूम है कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी माँ पर गिरा गुजरेगी, ये बात उसकी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए मैं नमाज को हल्का कर देता। माविया बिन हकम सलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ा था, किसी सहाबी को छींक आई, मेरी जबान से यह हमकल्ला निकल गया। अब सहाबा मुझे गोरने लगे, मैंने कहा मेरी माँ मुझे गुम पाए, तुम लोग क्यों गोर रहे हो? अब सहाबा किराम अपनी रानों पर हाथ मारने लगे मुझे खामोश कराने के लिए। मैं उनका इशारा समझ के खामोश हो गया। नमाज से सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, न मैंने आपसे पहले न आपके बाद ऐसा मुअल्लिम मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने न मुझे मारा न डांटा न बुरा भला कहा कि देखो भाई ये नमाज है, इसमें बात करना दुरुस्त नहीं, ये सिर्फ तकबीर तस्बीह और कुरान की तिलावत के लिए होती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली थी। सहाबा कहते हैं कि मैंने ऐसा मुअल्लिम कभी नहीं देखा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का दोस्तों एक पहलू था अफ़्व और दरगुजरी। अल्लाह के रसूल को कोई अजियत पहुंचा तो अल्लाह के रसूल बदला नहीं लेते थे। देखिए
حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجرانی چادر اڑے ہوئے تھے، ہم جا رہے تھے، ایک بدو دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کے سختی سے کھینچتا ہے کہ میں نے اس کے نشانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر دیکھے۔ وہ کیا کہتا ہے بدو دیہاتی؟ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مار دیا اسے مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا دیے، کہا یہ جو چیز اس کو چاہیے وہ دے دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چیز اس کو مانگتی ہے وہ دے دو اسے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ آپ نے کوئی حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ 10 سال آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کبھی ڈانٹا، کبھی مارا، برا بلا کھا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ اخلاق والا کبھی انسان نہیں دیکھا۔ میں نے لوگوں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو وضو کرانے آتا، جو لوٹا ہوتا تھا مٹی کا ہوتا تھا، کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتا، ٹوٹ جاتا، مٹی کا ہوتا تھا، تو میں ڈر جاتا کہ اللہ کے رسول ماریں گے یا ڈانٹیں گے، لیکن نظریں اٹھا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، اب مسکرا دیتے۔ اس مسکراہٹ نے میرے زخمی دل کے فائے رکھ دیے۔ ہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں مجھے 10 سال میں کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی اوئے بھی نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا؟ الٹا اگر گھر والے مجھے ڈانٹتے، آپ کے ازواج میں سے کوئی ڈانٹتی تو اللہ کے رسول کہتے رہنے دو، مقدر میں جو چیز تو ہو گئی، اب بیچارے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ اللہ کے رسول منع کر دیتے، ازواج بھی ڈانٹتی تو۔ دیکھیے یہ تو دوستو خادم تھا، خدمت گزار ماں کا بیٹا تھا۔ اللہ کے رسول کی رحم دلی کو، آپ کی عفو درگزر کو اس نے بھی آزما کے دیکھا تھا، جو نہ یار تھا نہ وفادار تھا، جرنیل تھا، ایک بادشاہ تھا اپنے دوستو ملک کا۔ سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا، مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا گیا اور مسجد نبی کے کھمبے سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول آئے، دیکھا لمبا جسم، ابری ہوئی نگاہیں، اور شان و شکوت، سطوت، سہولت، حکمرانی کی جتنے عیب سارے پائے جاتے۔ اللہ کے رسول آئے سمامہ کے پاس، کہا سمامہ کیا حال ہے؟ کہ گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہ جہاں نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیکھا کہ بڑا تیز مزاج آدمی ہے، تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا اللہ کے رسول ابھی صرف گرفتار کیا، ابھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سمامہ میں تجھے رہا کر دوں گا، کچھ نہیں کروں گا، ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھ لے۔ سمامہ کی گردن ایسے تھی، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہ سمامہ ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے۔ کیا کہا؟ ان تقتل تقتل ذا دم و ان تنم تنم علی منیم، کہ مجھے قتل کیا جائے گا یا میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا یا مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن اللہ کے رسول آیا کہ سمامہ ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے۔ کیا کہا؟ لم اروجہ اقبہ من وجہ کا لا وجہ البصیرہ، کیا دیکھوں آپ کے چہرے کو، کائنات میں آپ سے بدصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ۔ دوستو اللہ کے رسول مکے میں بے بس تھے تب بھی گالیاں کھائی، آج مدینے کے سربراہ ہیں، اپنے ملک کے بادشاہ، اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں، چہرے پہ غصہ نہیں، ہائے پیشانی پہ شکلیں نہیں۔ کہا سمامہ کوئی بات نہیں، مجھے نہیں دیکھتے تو مت دیکھ، میرے شہر کو دیکھ لے۔ کہا میں نے روم، ایران، یونان، مصر کی بستیاں دیکھی لیکن مدینے کی بستی سے کوئی بدصورت بستی ہے ہی نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ تیسرے دن آئے وہی بات۔ اب تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا سمامہ میں تجھے کچھ نہیں کرتا، ایک مرتبہ دیکھ لو۔ کہا جا نہیں دیکھتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستو سمامہ کو دیکھتے ہیں، اب زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، صحابہ کی تلواریں اٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہوگا اس گستاخ کی گردن اڑ جائے گی، لیکن ہمیشہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ہمیشہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے والی وہی مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ مجھے نہیں دیکھتا تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو بڑے ملک کا حکمراں ہے، بڑا آدمی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تجھے رہا کر دیا۔ اب صحابہ کی گردنیں تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، کہا دیکھو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمراں ہے، جاؤ مدینے کی سرحدوں سے عزت کے ساتھ رخصت کر کے آؤ۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے۔ سمامہ کو اللہ کے رسول نے چھوڑا، پلٹتے ہی سمامہ کے دل میں خیال آیا ہائے بڑے حاکم دیکھے، محکوم دیکھے، جرنیل دیکھے، کرنیل دیکھے، بادشاہ دیکھے، لیکن اتنا معاف کرنے والا کبھی نہیں دیکھا، اتنا حوصلے والا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ارے دیکھ تو لو اس کے چہرے میں کیا بات ہے جو بار بار دیکھنے کی بات کرتا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اب میں نہیں، سمامہ خود کہتا ہے، اس کی زبانی سنیے۔ سمامہ کہتا ہے کہ میں آگے کی طرف جا رہا تھا، میرا دل پیچھے کی طرف جا رہا تھا، 2 میل چلا گیا اور اتنا ہی تیز رفتاری سے بھاگ کر آیا، وہ ماہ تمام امام الانبیاء ننگے فرش پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آ کے اللہ کے رسول کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول سمامہ کو دیکھتے ہیں کہ سمامہ میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، کہ اللہ کے رسول چھوڑا تو تب تھا جب آپ کا اخلاق نہیں دیکھا تھا، آپ کی اسمارٹی کو نہیں دیکھا تھا، عفو درگزری کو نہیں دیکھا تھا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول اب تو آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا، اب ہمیشہ کے لیے آپ کے زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، اب تو
अल्लाह के रसूल मैं आपका खादिम हो गया हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल की माफी आपकी दरगुजरी को दोस्तों देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। देखिए अल्लाह के रसूल किस कदर अपने सहाबा से कंधा पेशानी के साथ मिलते थे। हाँ, हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के कान में बात करते तो जब तक अल्लाह के रसूल वो चेहरा नहीं हटाता, अल्लाह के रसूल अपना चेहरा नहीं हटाते थे। अल्लाह के रसूल किसी का हाथ पकड़ लेते या अल्लाह के रसूल का कोई हाथ पकड़ लेता तो जब तक वो नहीं छोड़ता तब तक अल्लाह के रसूल नहीं छोड़ते थे। इस कदर अल्लाह के रसूल सहाबा को अपनाइयत का एहसास दिलाते थे। जो अल्लाह के रसूल का बाहर वालों के साथ सलूक था वही घर वालों के साथ था। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल घर में क्या करते हैं? अम्मा आयशा कहती है घर वालों की खिदमत करते हैं। हाय, घर वालों की खिदमत करते हैं। जब आजान होती है तो अल्लाह के रसूल नमाज के लिए चले जाते हैं। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े खुद सीते थे, अपने जूते में पैबंद अल्लाह के रसूल खुद लगाते थे, बकरी खुद बांध लेते थे, बकरी का दूध अल्लाह के रसूल खुद निकालते थे, और हर आदमी जो अपने घरों में काम करते हैं वो अल्लाह के रसूल अपने घर में करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके दोस्तों उसने सलूक अपने घर वालों के साथ। अब आखिरी बात बताकर दोस्तों मैं अपनी बात को खत्म करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के हद के अंदर, अल्लाह के रसूल बहुत दोस्तों खुश तबीयत के थे, इसलिए अपने सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल मजाक भी करते थे। देखिए अल्लाह के रसूल का मजाक देखिए कितना शरीयत के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक में न लघु बात न झूठ कुछ नहीं पाएंगे। हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मुझे बुलाया कि या ज़ल उज़नैन, ऐ दो कानों वाले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है दो कानों वाले, हर इंसान दो कानों वाला होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मजाक के तौर पर हजरत अनस को बुलाया और दो कानों वाले इधर आ। एक दोस्तों देहाती आदमी था जिसका नाम जाहिर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देहात से आता तो कुछ हदिया ले आता। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हदिया कबूल कर लेते, और जब वो अपने गांव जाता तो अल्लाह के रसूल भी कुछ देकर भेजते उसको। इसीलिए अल्लाह के रसूल मजाक के तौर पर कहा करते थे कि जाहिर हमारा बादिया है, हमारा देहात है, हम उसके शहरी हैं। एक मरतबा बेचारा बहुत खूबसूरत नहीं था, पस्तकद आदमी था। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ चीजें बाजार के अंदर बेच रहा था। अल्लाह के रसूल उससे मिलने गए, आपने देखा कि वो अपने अंदर मतलब खोया हुआ है, आपकी चीजें बेच रहा है। अल्लाह के रसूल पीछे से गए, जाहिर को अपनी आगोश में ले लिया, पीछे से अल्लाह के रसूल ने पकड़ लिया जाहिर को। अब जाहिर ने कहा कि पहले तो अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे किसने पकड़ा है, पहले तो कहा कि छोड़ो कौन है, फिर पीछे मुड़ के देखता है तो अल्लाह के रसूल, फिर छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जब उसने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मेरे पीठ को लग रहा है तो छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस गुलाम को कौन खरीदेगा? जाहिद ने कहा अल्लाह के रसूल, क्योंकि बहुत खूबसूरत नहीं थे, पस्त कद्दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुलाम को कौन खरीदेगा? उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर बेचना चाहते हैं तो बहुत सस्ता पाएंगे, मुझे बहुत सस्ता पाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं जाहिद, अल्लाह की नजर में तुम बहुत महंगे हो, अल्लाह की नजर में तुम बहुत कीमती हो। तो दोस्तों ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था। एक बुढ़िया अल्लाह के रसूल के पास आती है, अल्लाह के रसूल मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ, हज भी किया, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आपने फरमाया नहीं, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब वो रोने लगी कि मैं लुट गई, बर्बाद होगी, इतने अमल के बाद भी मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। वो रोकर जाने लगी। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, कहा तुम जरूर जाओगी लेकिन जवान होकर, कोई आदमी बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं बल्कि जवान होकर जाओगी। अब वो खुश हो गई। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे सवारी दे दीजिए। आपने फरमाया ठीक है मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल बच्चे को मैं क्या करूं? आपने फरमाया हर ऊँट तो ऊँटनी का बच्चा होता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था। दोस्तों कितना अपनाहियत का एहसास दिला रहे थे अपने सहाबा को, हाँ, कि कोई अपने आप को हकीर न समझे, वो ये न समझे कि मैं इमामुल अंबिया हूं तो हकीर समझता हूं, नहीं, कितना अपनाहियत का एहसास दिलाते थे। सहाबा कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मिल बैठते थे, लगता ही नहीं था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे। दोस्तों इस तरह हम खुले हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिला झिझक बिला किसी खौफ के हम अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू करते थे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों अखलाक थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जितने हमने आपके पहलू जिक्र किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अखलाक हमें अपने अंदर भी पैदा करने की तौफीक दे। देखिए दोस्तों हम पर लाजिम है क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल नमूना है। देखिए क़यामत के दिन, और सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आमाल और अकीदे के बाद सबसे हमें अपने अखलाक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्क़लु शैइन फिल मीज़ान यौमुल क़ियामा अल खुलुकुल हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मीज़ान में अमल, अकीदे और अमल के मीज़ान में अकीदे के बाद सबसे भारी अमल इंसान का अच्छा अखलाक होगा, सबसे भारी अकीदे के बाद। तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि जितने हमने पहलू रखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक थे, अल्लाह हमें वो भी वही अखलाक इख्तियार करने की तौफीक दे, बुरे अखलाक से बचाए, हमारे भाइयों के जो हम पर हुकूक हैं वो हुकूक अदा करने की तौफीक दे, और जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम पे, जब हमारा खातिमा ईमान बिल्लाह पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।